Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? So it's your class of Principles of Commerce, and today I'm starting your another chapter, that is your cooperative society. As you usually heard the word cooperative, coordination, co-understanding. So today I choose the chapter for you people to go through what is cooperative society. Basically the word itself shows that it includes the mutual understanding and care and coordination of the people. Okay, society is a group of people who are working together for certain tasks. And if I talk about cooperative, it means that you are very much you can say coordinative to one another. So here we have that type of society in which people are coordinating from one another for a specific purpose. Now if I talk about what is the role of cooperative society, basically cooperative society is working for the purpose of welfare of the people. Like we have welfare institution in Pakistan, ED, Salani, Chipa, and your you can say trustee institutes, your different welfare center. Plus we have some different academies for skills and like skills learning, some technical institutes who are providing free education to the people. So it's based upon your welfare based work in which you collectively combine or some amount of money to help others. Okay, so we have such societies to help other businessmen in this. How we are forming this society, basically if a person is a needy and he want to do some task, so we can do it like that we accumulatedly combine the amount or investment, and then we help him to starting up his business also. So basically if I move further, we have this cooperative society. I will make it enlarged for you people so it will be easily. Yes, now it's visible, I think so. Yes, we are here. My screen is clear to all. Hope so. I'm sharing my screen. Wait for a while. We have this cooperative society. What do you know about cooperative society? First of all, I will discuss with you the cooperative role of this society, that why the society need to work out. As I told you, it's work for the welfare, for the coordination, for the help of others, for you can say they mutually work for other benefits, other person benefits. Okay, so I choose the highlighter for you people to underline. Basically it's a volunteer association. Again, it's a group of people who are working together voluntarily on their own choice. Okay, without any salary, without any wages or any concern or any output. इनको खुद से कोई फायदा नहीं होता of small producer or consumer. So we all are consumer, or we can be a producer also. So why we are working voluntarily? For the mutual benefits, for their mutual benefits. Okay, it is formed for producing and supplying goods in accordance with the needs. हम basically cooperative societies क्यों form करते हैं? For the producing and supplying goods. किसके लिए? लोगों की needs के लिए and requirements of the member who compose it. Okay, the members form and carry on the business of cooperative society themselves. खुद भी members form हो सकते हैं, एक business को carry on कर सकते हैं. They are the owner, they are the worker and managers of their own society. वो खुद ही अपने business के सब कुछ हैं, owner भी हैं, worker भी हैं, labor भी हैं, manager भी हैं, accountant भी हैं. They themselves, because it is not you can say departmental. If they have democratic control, it means democratic control means everyone in the organization can participate, can give the suggestion, can give the advices, can work for the organization. No restriction for the rights, duties and responsibilities. It is formed for the purpose of achieving economical. Now this is the main need of this society, that why we need it for the purpose of economic
social educative benefits. Okay, when we are down, हम खुद आगे नहीं बढ़ पा रहे होते, we need other person coordination so that we can be become stronger. Profit making is not the aim of this organization. Yes, it is very important point. इनका जो मेन मकसद होता है वो प्रॉफिट मेकिंग नहीं होता है, क्योंकि देखिए किसी भी आप वेलफेयर इंस्टीट्यूट में जाएं, अगर वो इंस्टीट्यूट वाले उस बिजनेस से, जैसे एक इंस्टीट्यूट है जहाँ पे लोग स्विंग मशीन्स हैं और लोग स्विंग करना सीख रहे हैं, उसमें स्टिचिंग है, डिज़ाइनिंग है, तो क्या वो लोगों को ट्रेन करने के पैसे चार्ज कर रहे हैं? मे बी दे कैन चार्ज, और मे बी दे कैन आस्क कि आप हमें इतनी स्टिचिंग करके दें, और वो उसको मार्केट में सोल्ड आउट करते होंगे। बट अगेन सोल्ड आउट उनकी कमोडिटीज़ करने से जो प्रॉफिट आता है वो अगेन उसी ऑर्गेनाइजेशन में दोबारा सर्व कर देते हैं। जैसे हॉस्पिटल्स हैं, हॉस्पिटल्स भी जो वेलफेयर हॉस्पिटल्स होते हैं वो बिजनेस जनरेट करते हैं, उनके पास डिफरेंट पेशेंट्स आते हैं, वो उनसे इकोनॉमिकल फ़ीस लेते हैं, मतलब एक रीज़नेबल फ़ीस लेते हैं, कोई 2,000 रुपये चार्ज नहीं करते, दे चार्ज ओनली 200 और 100 रुपीज़, विच कैन बी अफोर्डेबल बाय द पर्सन। अब वो जो फीस चार्ज कर रहे हैं, उस फीस से जो जो भी एक्यूमुलेट हो रही है, जमा हो रही है अमाउंट, वो दोबारा उसी ऑर्गेनाइजेशन में दोबारा से सर्व कर दी जाती है, दोबारा से इन्वेस्ट कर दी जाती है। उसमें से जो बिजनेसमैन होते हैं, यानी यू कैन से जो बिजनेस को जिन्होंने वो हॉस्पिटल स्टैब्लिश किया होता है, वो अपना प्रॉफिट नहीं रखते। ठीक है, दैट्स वाई इनका मेन मोटिव क्या है, प्रॉफिट बनाना नहीं है, या प्रॉफिट मेकिंग नहीं है, ना अपने लिए उसमें से सैलरीज रखना है। ठीक है, इट्स एम इज़ टू एलिमिनेट द सर्विसेज ऑफ मिडल मैन। बेसिकली उन्होंने मिडल मैन निकाल दिए हैं, उनको कोई होलसेलर, रिटेलर, ब्रोकर, स्टेट एजेंट कुछ नहीं चाहिए, वो खुद ही प्रोड्यूसर हैं, खुद ही लेबर हैं, खुद ही वर्कर हैं। ठीक है, सो सर्विसेज ऑफ मिडल मैन यहाँ पे प्रोवाइडेड नहीं है, एलिमिनेट कर दी है इन्होंने, क्योंकि ये चाहते हैं कि हम लोग अपना सारा काम खुद कर सकें, जो प्रॉफिट है वो भी दोबारा अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लगाएं और उसी को फिर बूस्ट अप करते रहें। इट ब्रिंग्स बेनिफिट फॉर द वेलफेयर ऑफ द मेंबर। बेसिकली इनका मेन मकसद क्या है, वेलफेयर के लिए काम करना, विद द हेल्प ऑफ अप्लाइंग द प्रिंसिपल्स, रूल्स, रेगुलेशन, पॉलिसीज, प्लान्स फॉर ईच एंड ईच फॉर ऑल इनटू प्रैक्टिस। उन सबको प्रैक्टिस में लाना, उन तमाम रूल्स एंड रेगुलेशंस को। इनका सक्सेस डिपेंड करता है ऑन हाउ मच म्यूचुअल कॉपरेशन, जितने ज़्यादा उनमें अंडरस्टैंडिंग होगी। क्योंकि देखें, आपको पता होगा कि इससे पहले मैंने आपसे बात करी थी कि अगर हम लोग पार्टनरशिप की बात करते हैं, पार्टनर्स में अगर आपस में डिस्प्यूट्स हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, फाइट्स हैं, उनके वो एक दूसरे से सोशली और म्यूचुअली अंडरस्टैंड नहीं करते, डिसीजन मेकिंग भी में भी प्रॉब्लम आएगी, कोई टास्क परफॉर्मेंस में भी प्रॉब्लम आएगी, हमें डिलीवरी ऑफ गुड्स में भी प्रॉब्लम आ सकती है, बिकॉज सारे पार्टनर्स एग्री नहीं हैं। डेट्स वाई कोऑपरेटिव सोसाइटी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल क्या है, क्योंकि पार्टनर्स को अपने पास पैसे नहीं रखने होते हैं, सारे कुछ पैसे दोबारा जितने भी अर्नड होते हैं वो दोबारा ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेस्ट होते हैं। इस फॉर दिस रीज़न इनके आपस में बहुत ज़्यादा कोऑर्डिनेटिव होते हैं, बहुत अच्छी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, जिसका रीज़न है कि दैट्स व्हाई द नेम कॉल्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी, दैट दे आर वेरी मच coordinative for the welfare of the others in between the members has been developed. Now come towards the characteristics. Again मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब आप किसी भी टॉपिक की characteristics पढ़ेंगे या उसके एडवांटेजेस पढ़ेंगे, तो वो दोनों चीज़ें सेम होती हैं। characteristics are the important features of this cooperative society के cooperative society किन मेन बातों पे बेस करती है, उसके सिग्निफिकेंस क्या है, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, और सम टाइम वही जो उसके करेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो आपके एडवांटेजेस भी होते हैं। ठीक है, सो अगर आप बोर्ड एग्जामिनेशन में करेक्टरिस्टिक्स की जो हेडिंग्स हैं वो एडवांटेजेस में लिख देते हैं, तो आपका रॉन्ग आंसर नहीं होगा, करेक्ट है। सो एडवांटेजेस को और करेक्टरिस्टिक्स को मर्ज करके आप अपना एक कंबाइंड नोट और कंबाइंड लेक्चर याद कर लीजिएगा। फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव आपके पास कोऑपरेटिव सोसाइटी की डेफिनेशन आती है। व्हाट इज कोऑपरेटिव सोसाइटी, इस जो मैंने भी आप लोगों को पॉइंट हाईलाइट किए हैं, इसमें से आप लोग को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं बेटे, और बाकी प्रैक्टिस्टिक्स एंड एडवांटेजेस मेनली कोई भी आपका टॉपिक है, चाहे वो पार्टनरशिप है, सोल प्रोप्राइटर है, या कंपनी हो या कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड सो ऑन, आप लोगों को एडवांटेजेस
या करेक्टरिस्टिक्स याद करने, डिसएडवांटेजेस उसका अपोजिट होता है, तो वो स्टूडेंट्स इतने कैपेबल होते हैं वो लिख लेते हैं, और समटाइम फॉर द बोर्ड्स पर्सपेक्टिव हमारे पास डिसएडवांटेजेस आते भी कम हैं. सो वी हैव टू मेन फोकस ऑन द करेक्टरिस्टिक्स एंड डिसएडवांटेज, सॉरी एडवांटेजेस, नॉट डिसएडवांटेज, एडवांटेजेस. ठीक है. I proceed further towards the topic. We have characteristics of cooperative society. Number one, the main features of the cooperative society is objective. इनका main मकसद क्या है ना? The main objective is to bring mutual benefits to the member. ठीक है, इनको दूसरे members को boost up करना है, उनको आगे लेके आना है, उनकी progress करवानी है, सिर्फ अपनी progress नहीं करनी. Money making और profit making इनका काम नहीं है. ठीक है, money making is not their target. Sorry. Their target is to help others. The society looks after the welfare of the member. So what is their task? इस society का काम क्या होता है कि अगर इनकी society में किसी ज़रूरतमंद इंसान को किसी की फीस देनी है, किसी की शादी होनी है, कोई बीमार है या कोई काम करना चाहता है, तो ये उसको इस तरह की बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं या ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करते हैं. ठीक है. Its aim producing and supplying goods to meet the requirement of the members. ठीक है, उनको गुड्स का प्रोविजन और सप्लाई ऑफ गुड्स जो कि उनके मेंबर्स की रिक्वायरमेंट होती हैं. ठीक है, और हर कोई अपनी यू कैन से अकॉर्डिंग टू देयर विश और अकॉर्डिंग टू देयर विल उसके अकॉर्डिंगली काम करते हैं सारे मेंबर्स. नाउ इफ आई टॉक अबाउट द कैपिटल, yes, capital. it collects capital from the member. Definitely member अपने कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं बेटे, जो भी उनकी मैंने कहा एज पर देयर विल एंड विश. द मेंबर्स परचेज द शेयर्स इन द कोऑपरेटिव सोसाइटी. इसमें भी शेयर्स होते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के, आप मेंबर्स बन सकते हैं, बट अगेन कोई प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता. प्रोवाइड नेसेसरी टू द कैपिटल ऑफ इट. द कोऑपरेटिव सोसाइटी इज डिवाइडेड इनटू फिक्स नंबर ऑफ शेयर्स. यहाँ पे आपके पास नंबर्स ऑफ शेयर्स फिक्स होते हैं. टू बिकम द मेंबर ऑफ द सोसाइटी वन मस्ट परचेज एटलीस्ट वन शेयर. ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम एक वक्त में 1000 शेयर्स ले लें, उन शेयर्स को आगे पब्लिक में सोल्ड आउट कर दें, वो पब्लिक औरों को दे दें. तो ट्रांसफरेबल नॉन ट्रांसफरेबल जो आपने पब्लिक और प्राइवेट कंपनीज में पढ़ा था वो प्रोसीजर भी नहीं है. ठीक है, हर पर्सन का अपने एक शेयर परचेज करना है, और ये प्रॉफिट ओरिएंटेड बिजनेस नहीं है. ठीक है, हमारे पास नेक्स्ट है बेटे मेंबरशिप. नाउ इफ आई टॉक अबाउट द मेंबरशिप, सो वी हैव देयर मस्ट बी एटलीस्ट 15 मेंबर्स. ठीक है, जिस तरह के आपने पार्टनरशिप पढ़ा था 2 till 20 गो ऑन होते हैं, 2 till 50 पे कंपनी में. बैंकिंग बिजनेस में हमारे पास 10 तक की स्ट्रेंथ होती है, बट इन दिस कोऑपरेटिव सोसाइटी वी हैव 15 मेंबर्स इन कोऑपरेटिव सोसाइटी, बट वन कांट बिकम द मेंबर ऑफ द सोसाइटी अनलेस ही अटेन्स द एज ऑफ मैच्योरिटी. मीन्स अगर आपको एज ऑफ मेच्योरिटी तक अटेन करना है, 18 का होना चाहिए ताकि आप उस कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर बन सकें. ठीक है, आफ्टर मेंबर्स. अच्छा, आई वाज टॉकिंग अबाउट द मेंबर्स. हमारे पास बेटे कोऑपरेटिव सोसाइटी में अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि 15 मेंबर्स होना ज़रूरी है, और हर मेंबर का मेच्योर होना एट द एज ऑफ 18, उसको वहाँ तक रीच करना भी ज़रूरी है. ठीक है, देन वी हैव अनदर हेडिंग. yes, we have next heading, democratic principle. Okay, in democratic principle, the cooperative society is based on the principle of democracy. We have done this, that cooperative society is based upon the democratic principles. Democracy means everyone have the right to speak, to give the decision. Every member enjoy the rights, duties and responsibilities. This is what I have discussed with you, that every member have the right to enjoy. So he is not bound to give the answer to the head of the institute, to the director, to other partner. नहीं, सबने मिलके बराबर का काम करना है, खुशी से काम करना है, अपनी will और wish से काम करना है, and their motive is to facilitate others. Okay, everyone has got only one vote. Policies of the society can be criticized by the members. Okay, so if they want to criticize on any rules and regulation, they have the strength to speak it out.
So the members have the democratic control. We have discussed this over the affairs of society. ठीक है? So main role is the democracy over here. Then we have transferability of the share. The shares of the cooperative society can be transferred to the members of the society. One member से another member को transfer हो सकता है. They cannot be transferred to non-member. ठीक है? अभी हमने बात करी थी कि जनरल पब्लिक में नहीं sold out होगा. ठीक है? Transfer to the members of the society. Okay. Then we have division of division of profit. ठीक है बेटे? Although it is not the aim idea of the cooperative society का main motive profit generation बिल्कुल भी नहीं है at any cost, yet it often earns a handsome profit. The profit of the society is distributed to the members on the paid up capital, but the profit of the consumer cooperative society are distributed in the proportion to the total purchases during the trading period. इन्होंने कहा है कि अगर आपके पास आपका प्रॉफिट जनरेट होता है और वो जो कि एक हैंडसम प्रॉफिट जनरेट होता है, उसमें उन्होंने कहा द प्रॉफिट जो है कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी का वो एक खास प्रोपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट होगा, जो कि उनकी कोऑपरेटिव सोसाइटी की डील में लिखा हुआ जाएगा कि अगर हमारा एक्सपेक्टेड है कि हमने 1000 इन्वेस्ट किए हैं और हमें कहीं से किसी भी इंस्टीट्यूट से हमें 1 का 10,000 मिला है, तो और वो भी ट्रेडिंग के टाइम पे, तो उसको हम लोग आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. बट अगेन उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं. ऐसा नहीं है कि उसको इक्वली डिवाइड कर लें. नॉट लाइक दैट. टू द टोटल परचेज ड्यूरिंग द ट्रेडिंग पीरियड. बट अगेन मेन मोटिव क्या है? इट्स नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट. इनका मेन मोटिव जो है वो नॉट द मेन आइडिया ऑफ द कॉर्पोरेट सोसाइटी इज टू अर्न प्रॉफिट. प्रॉफिट अर्न करना इनका मेन मोटिव नहीं होता बेसिकली, बिकॉज इनके मेन मोटिव में एंटिटी यहाँ से इमिट कर दीजिए. हमारे पास कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो मेन मोटिव आता है ना बेटे, वो बेसिकली जितने भी वेलफेयर इंस्टीट्यूट्स हैं वो आपका मेन मोटिव है. Now we have advantages. Before advantages, wait for a while. We have advantages of cooperative society. Number one, elimination of middleman. As I have discussed with you कि हमारे पास cooperative society का main motive क्या था कि ये लोग middleman को eliminate कर देते. We have discussed in the definition. ठीक है? Elimination of the middleman. ये वाला point यहाँ पे लिखा हुआ है. ठीक है? So whatever जो भी आप definitions में से याद करेंगे, आप उन definitions में से भी अपनी headings को form कर सकते हैं बेटे. ठीक है? मैं आप लोग के लिए highlight इसलिए करती हूँ ताकि highlight point you have to learn by heart. ठीक है? The consumer get their requirement direct from the producer. So direct requirement from the producer, directly जाके आप producer से ले सकते हैं. आपको किसी किस्म के कोई middleman की ज़रूरत नहीं है. No need of wholesaler, retailer, any agent or importer or exporter. You can directly go to the producer and ask your product. Or they supply their own requirements. You can supply your own requirements also. Hence, the cooperative society eliminates the middleman and makes the goods available to the consumer at the cheapest rate. ठीक है? क्योंकि जब wholesaler, retailer की chain खत्म हो जाती है, तो आपके पास automatically product जो है वो बहुत reasonable cost पे आ जाएगी. If I talk about the economy, certain economies can be enjoyed by the members of cooperative society in the field of production and distribution. ठीक है? हमारे पास इस तरह की बहुत सारी cooperative societies हैं. क्योंकि हम मैं इस तरह क्यों कह रही हूँ कि इकोनॉमी के लिए, क्योंकि बहुत लाइक देयर आर मैनी कंपनीज जो कि फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल काम करती हैं, लोगों के लिए. लाइक कुछ इस तरह की क्लॉथ मेकिंग्स होती हैं, कुछ बेडशीट्स स्टिच हो रहे होते हैं, कहीं कपड़े स्टिच हो रहे होते हैं, जिसमें वो लोग क्या करते हैं, जितना भी उनके पास अगर उससे प्रॉफिट जनरेट होता है उससे और कपड़ा खरीद लेते हैं, और जो वहाँ पे लोग काम करने आते हैं उनसे से उसकी कटिंग और स्टिचिंग करवाते हैं. अगेन प्रॉफिट जनरेट होता है, उससे और ज़्यादा अपने बिजनेस को वास्ट करते रहते हैं और लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और काम करें. ठीक है? सो द पीपल आर कमिंग फॉर द वर्किंग, और लोग आते हैं और जो प्रॉफिट मिलता है वो उन्हीं लोगों को या उन्हें उसकी स्किल्स प्रोवाइड की जाती हैं. उन जो वर्कर्स होते हैं उनको पे ऑफ कर दिया जाता है. The society has not to bother from marketing the goods. ठीक है? They don't need to marketize. उन्हें कोई advertisement marketing की ज़रूरत नहीं है, because they are working for welfare for the small scale. It's not the biggest scale production, it's a small scale production. The members are its regular customer and it needs not advertise its product in the market. ठीक है? Okay, now we have capture market. ये वाला point.
The cooperative societies sell goods at a cheaper rate. We know this thing, hence it can be easily attract the customer. क्योंकि जितनी सस्ती चीज़ मिलती है हम लोग फ़ौरन भागते हुए जाते हैं, अरे यार ये खाते हैं ना 20 रुपए वाला बन कबाब. So we definitely attract towards the cheapest rate product जो कि homemade भी होती हैं. या समटाइम आपको वो एक कुल्फ़ी नज़र आती है लाइक 10 रुपीज़ कुल्फ़ी, और उसकी छोटी कुल्फ़ी 5 रुपीज़ की होती है. तो हम ज़्यादा खुश होते हैं जब हम उसको 5 to 6 आइसक्रीम्स को enjoy कर लेते हैं rather than to have one cornetto of 50 rupees or 100 rupees. So we are really enjoying those products who are at cheapest rate, and हमें sometime हम इसको soul satisfaction को भी enjoy करते हैं. We have another point, no surplus stock. बहुत surplus stock की ज़रूरत नहीं होती, कोई गोडाउन स्टोरेज की फैसिलिटी नहीं है. The society has got regular customers, so it has to keep any surplus stock in hand. Plus हमारे पास जो regular clients आते हैं, हमारे पास जो amount generate होता है basically हम उसी से अपना raw material purchase करते हैं. उस जितना रॉ मटेरियल आता है दोबारा उसी से प्रोडक्ट बनाते हैं, फिर अमाउंट आती है, फिर हमारे पास कंजम्पशन प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है. ठीक है. सेविंग ऑफ मैनेजमेंट एक्सपेंसेस. समटाइम्स द मेंबर्स रेंडर फीस फ्री सर्विसेज टू मैनेज द अफेयर्स. रेंडर मीन्स प्रोवाइड. Render means provide free services to manage the affairs of the society. They do not demand any remuneration. Remuneration means fringe benefits or you can say salaries. ठीक है. This is we have discussed. Free services provide करते हैं. अब हो सकता है मैं एक टीचर हूँ, मैं एक volunteer association को join करूँ जहाँ मैं बच्चों को free education दे सकती हूँ. If I am a doctor, I give free medical services. If I am a lawyer, I can give free advices. So without asking any salaries or fee, you can join the you can say cooperative society. ठीक है. हो सकता है आपका कोई अपना साइड बिजनेस हो जो कि प्रॉफिटेबल हो, बट आप एक बंदा जो कि बिजनेसमैन है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी भी ज्वाइन कर सकता है, लेकिन उस कोऑपरेटिव सोसाइटी में जब वो काम करेगा तो प्रॉफिट नहीं रखेगा. लाइक आई एम अ टीचर, मैं एक इंस्टीट्यूट में पढ़ाती हूँ, लेकिन हो सकता है मेरा पार्ट टाइम क्या हो, मैं वॉलंटियरली कहीं वर्क करती हूँ. सो यू कैन डू, क्योंकि ये तो एक वेलफेयर के लिए है ना. सो यू कैन डू योर टास्क ऑल्सो, यू कैन वर्क फॉर द वेलफेयर ऑल्सो. Educative value, the members are able to learn the principles. Main principles कहते हैं rules को, regulations को, असूल को. They learn how to render or how to provide the services for the mutual benefits of themselves. बार बार ये वर्ड आएगा, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा. दे लर्न अबाउट द इकोनॉमिक एंड सोशल. ये हमने अभी हेडिंग में इसके याद किया था कि सोशल, इकोनॉमिकल एंड एजुकेटिव का वर्ड हमने इसके हेडिंग में वर्ड पढ़ा था. हमारे पास मेन काम क्या है कि हमने अपनी सोसाइटी को इकोनॉमिकली भी बूस्टअप करना है, यानी उनकी वेल्थ को, उनकी हेल्थ को बूस्टअप करना है, उनके सोशली कनेक्टिविटी, उनको पूरे नेशनल और इंटरनेशनली अपनी यूथ को स्ट्रॉन्ग करना है, और उनके एजुकेशन को, एजुकेटिव पर्सपेक्टिव को भी स्ट्रॉन्ग करना है. तो वो जब भी हो सकता है कि जब आप लोगों को काम देंगे. ठीक है. तो व्हेन यू आर वर्किंग, जब आपके पास काम करने से थोड़े पैसे आएंगे, तो हो सकता है स्टूडेंट है तो अपनी पढ़ाई पे खर्च करे, कोई नॉर्मल लेमैन है तो वो अपने घर में जाके अपने किड्स को ग्रूम अप कर सकता है, व्हाटएवर. Okay, now my time is going up. Now provision for the maintenance of the poor. Definitely हम गरीब लोगों की मदद करते हैं, उनको provision provide करते हैं, सामान provide कर रहे होते हैं, उनको maintain करते हैं ताकि वो अच्छे से और बेहतर ज़िंदगी गुजार सकें. Poor people accumulate and invest their small savings in society, which brings for them a better standard of living. क्या करते हैं कि तमाम जैसे फॉर एग्जांपल हमारे किसी कम्युनिटी में the people cannot afford the marriage ceremonies, so what they do, this accumulatively, collectively collect the amount of money, and then as per their will and wish, whatever the amount of money collection, they do their specific performance. like किसी की शादी होनी है, किसी के एजुकेशन के लिए, तो इस तरह के बहुत सारे कम्युनिटी सेंटर्स होते हैं. कम्युनिटीज़ खुद भी होती हैं जो कि हर महीने अपने अमाउंट में से कुछ हिस्सा अपने इनकम में से वेलफेयर के लिए सर्व करती हैं, जो कि एक नेकी भी है. Okay. The people who have engaged in small and quarter, okay, I have to highlight, invest in the small savings, then bring them for the better standard of living, to increase the income of agriculturists and the people who have engaged in small cottage industries. Okay.
वी हैव अनदर पॉइंट, सोशल बेनिफिट, सोशल सबको मिलजुल के रहना है. इट डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ रिलायंस अमंग द जनरल पीपल. हमारे अंदर सुकून आ जाता है, दूसरे की मदद करते हैं. सम टाइम अपने अंदर ये हैबिट डेवलप करें. इफ़ यू आर हेल्पिंग अदर्स, यू योर सेल्फ फील वेरी गुड. बड़ी अच्छी सुकून की नींद आती है वेन एवर यू हेल्प समवन. ठीक है, आप किसी को अच्छी एडवाइस दें, किसी को रास्ते में से कोई जा रहा हो गिरने वाला हो उसको थाम लें, तो ये भी आपकी एक नेकी है, ये भी आपकी सोशल बेनिफिट्स में आता है. सो योर सेल्फ कॉन्फिडेंस, योर सेल्फ रिलायंस अमंग द जनरल पब्लिक, दे लर्न द प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ हेल्प इज द बेस्ट हेल्प. ओके, तो पहले आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग करेंगे, फिर दूसरे को स्ट्रॉन्ग करेंगे, और दूसरे को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपके पास जो कुछ भी है, मैं सिर्फ यहाँ पे मनी की बात नहीं कर रही, मैं आपकी स्ट्रेंथ की बात कर रही हूँ, आपकी गुडविल की बात कर रही हूँ. जो फॉर एग्जांपल आप स्टूडेंट हैं, आप एजुकेटर हैं, आप किसी को पढ़ा सकते हैं. ठीक है, आप किसी को नेकी की बात बता सकते हैं. अगर आपने कुरान शरीफ पढ़ा हुआ है, आप किसी को वो कुरान शरीफ पढ़ा सकते हैं. तो ये तमाम चीज़ें आपकी बेसिकली आप एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का पार्ट भी बन रहे हैं, प्लस आपकी जो सेल्फ हेल्प है और इनर रिलायंस है वो बहुत सेटिस्फाइड होगी. At the same time it develops them a sense of cooperation and sacrifices for the others also. ठीक है, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉयमेंट. नाउ जैसे ही आप ज़्यादा से ज़्यादा कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म करते हैं, बेसिकली आप लोगों को एम्प्लॉयमेंट परफॉर्म कर रहे हैं. इट सॉल्व अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम्स, लोगों की अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म होगी क्योंकि सब लोग मिलके किसी ख़ास टास्क के लिए काम करेंगे, और हर किसी को जब थोड़ा बहुत मिलेगा तो वो अपनी लाइफ स्टैंडर्ड को आहिस्ता आहिस्ता वर्क परफॉर्मेंस में लेके आएगा. ठीक है, स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज. इंटीग्रेशन कहते हैं मिलना, इंटीग्रेट करना, to relate one and another, integration. Okay, under the same system of production distribution, a complete integration between the manufacturers, wholesaler, इन सब के दरमियान आपस में इंटरेक्शन, ठीक है, बहुत अच्छा हो जाता है क्योंकि इन ये सब एक ख़ास मकसद के लिए काम कर रहे हैं. सही है, अब प्रोड्यूसर जो है उसको होलसेलर रिटेलर की ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्या कर रहा है कि वो उस होलसेलर रिटेलर जब बीच में से ख़त्म हो रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आपके पास प्रोड्यूसर और कंज्यूमर की चेन स्ट्रांग हो जाती है. सो अंडर दिस सिस्टम प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन अ कंप्लीट इंटीग्रेशन, जो एक स्ट्रांग बॉन्डिंग होती है प्रोड्यूसर, होलसेलर, रिटेलर, कंज्यूमर. अब हमें होलसेलर रिटेलर को प्रॉफिट तो देना नहीं है, इसलिए वो बगैर प्रॉफिट के अगर काम करना चाहते हैं तो जॉइंट स्टॉक वो सॉरी कोऑपरेटिव सोसाइटी को ज्वाइन कर लें. क्या बोल रही हूँ? यस, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ. अब वेल्थ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रही है under the system of production and distribution. Wealth कैन नॉट बी कॉन्सेंट्रेटेड इन फ्यू हैंड्स. ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई एक पैसे कमाएगा प्रॉफिट अपने पास रख लेगा. इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ हमारे पास, उन्होंने यही कहा था कि अगर ट्रेडिंग बिजनेस है और आपका प्रॉफिट मोर देन द एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है तो अंडर एक सर्टेन कंडीशन होगी जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन होती है. यूजली नाउ डेज हमारे पास जो जनरल, ये तो बुकिश है, जनरल प्रैक्टिस में कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में जो प्रैक्टिस में बात होती है वो ये होता है कि प्रॉफिट जो है वो पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट करते नहीं हैं. ठीक है, बट हेयर इन द ट्रेडिंग बिजनेस दे हैव मेंशन कि अगर आपका फ्रूटफुल प्रॉफिट होता है तो उसकी सम अमाउंट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है. इक्वल स्टेटस, हर कोई बराबर है, कोई डायरेक्टर नहीं है, कोई पार्टनर नहीं है, किसी की कोई ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग अलग नहीं है. देयर इज़ नो मैटर्स मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप. ठीक है, कोई मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप नहीं है. नो बॉस, नो एम्प्लॉई, एवरीवन हैज़ टू वर्क. हर कोई अपना ओनर, मैनेजर, वर्कर है. दिस इज ऑल्सो वी हैव डन in our you can say heading point of view. So this is all for today. Thank you so much for joining the class, for listening me so patiently, and hope so you understand this lecture very well in a you can say fastest way. मैं आप लोग के साथ एक दफ़ा इसको क्विक बता देती हूँ. कोऑपरेटिव सोसाइटी है, वॉलंटियरली एसोसिएशन पे वर्क करती है, लोगों के बेनिफिट्स के लिए सारा इसने काम करना होता है, वेलफेयर बेस्ड होती है. करेक्टरिस्टिक्स में आते हैं बेटे, ऑब्जेक्ट, कैपिटल, मेंबरशिप. ठीक है, देन डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स एंड डिवीजन ऑफ प्रॉफिट. वी हैव 6 हेडिंग्स फॉर दिस, 7 इसको कट कर दीजिएगा. वी हैव 6 हेडिंग्स फॉर करेक्टरिस्टिक्स. नाउ वी हैव एडवांटेजेस, एलिमिनेशन ऑफ मिडलमैन, इकोनॉमी, capture market, no surplus products, saving of management expense, educative value, provision for the maintenance of the poor,
social benefits, provision for employment, integration, equal distribution of wealth, equal status. Now what you have to do, प्लीज़ काइंडली अपने जहन में रखिएगा, बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको सेक्शन बी में ये क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है, बट आपको इसको 2.5 पेजेस का लिखना है, तो लर्निंग भी अपनी 2.5 पेजेस ऑफ योर रजिस्टर इतनी कीजिएगा, 2.5 पेजेस ऑफ योर रजिस्टर. थैंक यू सो मच. जज़ाक अल्लाह. अल्लाह हाफिज़.